This conference will now be recorded. I hope सारे बच्चे आ चुके हैं. Okay, let's begin. So, as you all know, today's session is about a very interesting case which relates to which later on became one of the biggest accounting frauds or auditing frauds of the world. We are obviously talking about Enron Corporation. So I just want all of you to sit back, relax, listen to me, try to learn a few things from whatever happened. Okay. I have tried to summarize it because the case was actually really long and there were some really complex matters involved. So I tried to simplify them. Okay. If you have any queries, we will take that at the end of the session. Okay. So let's begin. Enron Corporation, once the seventh largest company of USA, the company that revolutionized energy distribution and trading, the company that was smarter than its competitors and their business was intricate and too complex for an average person to understand. Except in reality, this was all a big scam filled with lies, fraud, political manipulation. Enron was the biggest scam in the history, which highlighted the corporate greed that shines directly into the hearts of corporate America. In today's session, let's learn how one company took 10 years to grow to $60 billion in value and then in less than 9 months go bankrupt. This is the story of Enron. Our story begins with a particular person by the name of Kenneth Lay. Kenneth Lay was one of the most influential persons in 1990s and 2000s in corporate America, in the corporate American scene, you can say. His first major job was working as a financial analyst at Pentagon, where he climbed the ranks and became close friends with George Bush. Yes, the George Bush, 41st president of America. He was really close with him. Example, once the son of George Bush, the George W. Bush, became president, the corporate jet of Enron, the personal jet of Enron, was sent to take George Bush and his wife to the inauguration ceremony. And you will get to know that all these favors and all these political connections came into play in the coming years. Kenneth Lay was driven by money. He hired people who could make him more money. This was made evident during the Valhalla scandal in 1987. Two oil traders working for Enron gambled enormously on companies' behalf, shifting money to fake accounts, which was found out by the auditors of Enron. But instead of firing those two rogue traders, they made no changes and sent them a letter saying, please keep making us millions. Now just think about the mind of this person. He started this company. He was the founder of this company, and this is his philosophy. This is his mindset. Okay, we can begin to understand why it all fell off, or why it at the end it all fell apart. Let's learn something about some very interesting facts about Enron. Enron was formed in 1985 by merger of two natural gas companies by the name of Houston Natural Gas Company and Inter North Natural Gas Company, Natural Gas Distribution Corporation. Okay. It was established in 1985 by Kenneth Lay as a result of merger between Houston Natural Gas and Internorth Natural Gas Company. It was based in Houston, Texas. At one point, Enron employed approximately 20,000 staff and claimed a revenue of nearly $101 billion during 2000s. Now, just to give you a context, in 2000, the revenue that they reported was more than Microsoft, was more than Apple, was more than, you can say, the Shell, the oil producing company, more than Boeing, the aerospace manufacturing, the airplane manufacturing company, and it was even more than Facebook. No, not Facebook. The earlier version of that. I'm confusing them. Sorry. Okay. So it was one of those companies which possessed one of the largest revenue in 2000 in America. The Fortune magazine made
Enron as America's most innovative company for 6 consecutive years from 1995 to 2001. And the most interesting fact is, company went bankrupt in 2000. Enron was on the brink of bankruptcy. Still, Fortune magazine named Enron America's most innovative company. Okay, so now just imagine this company. The main business of this company was selling natural gas and producing electricity and supplying electricity. अब अगर आप में से किसी ने भी कभी ना इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या गैस सेक्टर जो आप कहते हो, ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो जो ये नंबर्स है ना, ये इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कोई भी आज तक कोई भी नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज नेवर रीच्ड द लेवल or never shown the amount of growth that Enron showed. Example, from 1995 to 1990, Enron's revenue share price grows by 311%, and the revenue was growing at a rate of 35% per year. Now, it might not sound huge to you, but 35% annual growth is not even achieved by Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, LinkedIn, Epic Games. तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां वो अचीव नहीं कर पाई फिगर यार ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. एंड दिस कंपनी, नेचुरल गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वाज पोस्टिंग दिस फिगर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उस सेक्टर में काम करी ना जहां पे अगर कंपनी प्रॉफिट भी कमा ले, मतलब ₹1 का प्रॉफिट भी हो जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है. All around the world, almost 80% of natural gas producing and supplying company or electricity producing supply companies are controlled by government, and that's for a reason, because these companies don't make profits. इनका जो आपका स्ट्रक्चर है, जिस फील्ड में काम करते हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, but still this company was making profit. Now let's see how they were making profit. In early 1990s, Kenneth Lay helped to initiate the selling of electricity at market price. Now, as you all know, the price of the electricity is set up, it's fixed by central government, okay, almost all around the world, except for few countries, including America. But it was not until 1990 that this, you can say, this resolution was passed. Okay. And Kenneth Lay was one of the most influential persons in making that deregulation legislation passed. Okay. Obviously, he had political connections. He was friends with the then president. But हाँ, उन्होंने उसकी वजह से उनको फायदा मिला. Enron became the largest seller of natural gas in North America in 1992. Its trading of gas contracts earned $112 million. In 1992, $112 million. It doesn't sound much, but the thing is, just imagine, within next 8 years, in 1992, they posted a revenue of $112 million. Within 8 years, their revenue goes to $101 billion. That's around 10,000% jump. 10,000% jump in 8 years. Now, this is the time where the Enron case really begins to get interesting. In an attempt to achieve further growth, Enron pursued diversification strategy. The company owned and operated a variety of assets, including gas pipelines, electricity plants, paper plants, water plants, and broadband service across the globe. Enron's stock price increased from the start of 1990s until the 1998 by 311%, only modestly higher than the average rate of growth of Standard & Poor's Index, S&P 500 Index, जो आपका Nasdaq का index है. जैसे अपने यहाँ पे Nifty and Sensex चलते हैं, वैसे ही S&P 500 Index is the benchmark of Nasdaq. However, the stock increased by 56% in 1999 and a further 87% in 2000, compared to 20% increase and 10% decrease for the index during the same years. By December 31st, 2000, Enron's stock price was priced at $83.13, and its market capitalization exceeded $60 billion. 70 times the earning and 6 times the book value, an indication that the stock market high expectation about its future prospect. Now, 70:1
का प्राइस अर्निंग रेशियो। देखो जो लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे जानते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने एक रेशियो के बारे में जरूर सुन रखा होगा कि हर कंपनी को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस उसका पी रेशियो कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो, उसकी मार्केट प्राइस और उसकी अर्निंग पर शेयर के बीच का डिफरेंस। दिस कंपनीज पी वाज अराउंड 70 नाउ। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनको इस नंबर के बारे में पता होगा कि इतना हाई क्यों है। जस्ट इमेजिन कि आप 1 रुपया कमा रहे हो, बट पर्सन आपके उस 1 रुपए की कमाई के लिए 70 रुपीज पे करने को तैयार है। अगर आप 1 रुपए की कमाई करते हो तो जो मार्केट है वो आपको उस 1 रुपए की कमाई के लिए 70 रुपीज देने के लिए तैयार बैठा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल सही। इट शोज द हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखो अराउंड 25 का पी जब किसी कंपनी का टच करता है ना, अगर रियल लाइफ में आज की तारीख में कोई कंपनी 25 का पी टच करती है तो अपन कहते हैं कि मार्केट इज टू ऑप्टिमिस्टिक, द शेयर इज बाउंड टू फॉल। इफ इट क्रॉस 30 देन तो लोग खुद ही बेचना स्टार्ट कर लेते, क्योंकि इट्स लाइक द पैनिक बटन इज स्ट्रक। बट दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग कंफर्टेबली एट 70। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं 70 टाइम्स, क्योंकि इसका शेयर आगे बढ़ के आप देखोगे जो जनवरी 2001 के अंदर इट टच 90, द हाईएस्ट 90.17 शायद इसका हाईएस्ट वैल्यूएशन था। इट टच दैट इन जनवरी 21। सो और हायर जा रहा है, 70 टाइम्स पीई के बाद में भी और हायर गया। लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। बट अब एक बात सुनो, द थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी जो स्टार्टिंग से प्रॉफिट दिखा रही होती है, they started the company in 1985 and until 1990 they were always showing profits in a market, yeah, in a industry where profits were unheard of. Okay, most of the firms were owned by governments all around the world. You are a private firm and you are earning profit, that too consistent profit at a growth rate of almost 35%. अब दिक्कत क्या आती है यार, कब तक कमा लो, एक लिमिट आई and that limit touched Enron, that you कह सकते हो around 1989 after the 4 years of its establishment, Enron touched that limit and in 1990 enters Jeffrey Skilling. जेफरी स्किलिंग के बारे में ना बस एक चीज बेटा, सॉरी बट किसी का माइक ऑन था। जेफरी स्किलिंग को सीईओ बनाया गया था एनरॉन कॉर्पोरेशन का इन 1990। बट स्किलिंग के बारे में आपको एक बार पता होना चाहिए, he believed in the Darwinian theory of survival of the fittest, the theory that Hitler used to believe in. Says a lot about a man. Skilling wanted to turn Enron from a gas company into a stock market for natural gas. Skilling has this brilliant idea. He met Kenneth Lay and said, look, I know you are cooking your books, do it. I don't want to interfere into that, but I see a potential where we both can earn a lot and Enron can grow. And he proposed, okay, let's start a stock market, let's start a trading floor where people would be able to trade natural gas futures and crude oil futures. Natural gas, electricity, crude oil related futures, क्योंकि ये अभी तक मार्केट में नहीं आए थे, but they wanted to start this. Kenneth Lay liked the idea and he welcomed Jeffrey Skilling on board in 1990. Jeffrey Skilling was previously has previously served as a partner at McKinsey and Company. If you have heard about McKinsey and Company, you know it's a renowned, let's say, a world-renowned financial analyst firm, which likes to review the firms from different industries. Now, he was known for his Darwinian philosophy, survival of the fittest. His favorite model, the selfless gene, describes how greed and competition motivates human nature. As soon as Jeffrey Skilling joined Enron, he implemented a new grading system, which graded every employee on a scale of 1 to 5. And the thing was, if you're graded 1, if your grade is 1, you will earn around 1000% the earnings. The normal, your fixed, if your fixed salary is $10,000, okay, and you are graded as grade 1, you will be given a 1000% bonus, a $100,000 as bonus. But if you are graded as 5, you are fired. अब obviously कोई इंसान नहीं जाएगा 5 grade होना, but there was the catch. The catch was
at least 10% of the employees has to be graded 5. Every year at least 10% of the employees has to be graded 5. मतलब 10% लोगों को आपको कंपनी से निकालना ही पड़ेगा. Now you can just imagine इससे क्या हुआ. Obviously cut throat competition increase हुआ. Everyone was just driven by how much I can earn the company. If I can make company a good deal, I will have to I can keep my job as well as earn a lot of bonus. और जब आप लोगों को पैसे से मोटिवेट करने की कोशिश करते हो वो भी इस तरीके से, तो लोग होंगे. एंड जब आप लोगों को जानबूझ के ऐसे काम करवाते हो या फोर्स करते हो तो फिर वहां पे फ्रॉड्स भी होते हैं, अनएथिकल काम भी होते हैं, वैसे कुछ. बट अभी आगे जेफरी स्किलिंग ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंट्रोड्यूस करी टू द वर्ल्ड, या यूं कह लो एनर्जी सेक्टर, दैट वाज मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड. नाउ अगर इसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टूडेंट होना जरूरी है इस मेथड को समझने के लिए, बट मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है. बट जस्ट इमेजिन, just try to understand the scenario and why this method was so inappropriate, but why this was so effective also. Jeffrey Skilling introduced the company to the mark-to-market accounting. You can ask, what is mark-to-market accounting? Mark-to-market accounting is an accounting method which allows the company to fraudulently you can say to fraudulently show or book the profits that it has still yet to earn. सर कैसे? सिंपल. मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि अगर आपने मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें आने वाले 10 सालों के अंदर आप $50 मिलियन कमाओगे, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग आपको फेयर बेसिस पे वैल्यू करने का मौका देती है कि आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को फेयर वैल्यू बेसिस पे वैल्यू करो और उस फेयर वैल्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज के आज रिकॉर्ड कर दो. यू हैव नॉट इवन अर्नड अ सिंगल पेनी. अभी कॉन्ट्रैक्ट में 10 साल बाद पैसे मिलने वाले हैं या 10 साल तक पैसे मिलेंगे. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोजेक्ट एंड आई हैव बुक्ड $50 मिलियन एज माय प्रॉफिट by stating it as the fair value. They were not following the conventional revenue recognition methods. Just imagine कि यार अगर आपको एक कंपनी को मौका मिल जाए कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन बुक रेवेन्यू ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर येट टू फ्रूटिफाई. और इसका फायदा कब से, एक एग्जांपल दो एग्जांपल है मेरे पास में, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल. इट वाज अराउंड 1990s that Enron Corporation wanted to start a power plant in India also. So they contacted the Maharashtra government. Maharashtra government allotted them a plot of land in Ratnagiri district, and they started to building a plant. But towards the plant was never finished, obviously. But they soon realized that Indians cannot afford the electricity that that plant would produce, क्योंकि उनकी जो प्राइस है उस प्राइस पे इंडियंस कांट, मतलब कोई भी ना तो इंडियन हाउसहोल्ड्स ना ही इंडियन फैक्ट्रीज कैन अफोर्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी दैट दे वर रेडी टू सप्लाई. अब जब आपको पता है कि यार आपके लिए मार्केट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी बंद कर देगी प्रोजेक्ट. एंड डिड दैट, but not before booking $43 million as profit from a project that never started, and paid themselves $16 million as bonuses. The executives of Enron decided to book $43 million as profit from a particular project that has never started. It still lays in ruins. You can still go and visit the site, the unfinished site. But because fair value method, they could. अब आप बोलोगे यार fair value method को approve कौन कर रहा है सर? They got it approved in 1992 from Securities Exchange Commission of America. Securities Exchange of America ने इस मेथड को अप्रूव कर दिया. ऑब्वियसली बात है, क्यों करा आप लोग समझ सकते हैं, जॉर्ज बुश. ठीक है, बट तो दो चीज है, एक ग्रेडिंग सिस्टम एंड देन यू हैव द फेयर वैल्यू सिस्टम. परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर, यू कैन से, मैनिपुलेशंस, विंडो ड्रेसिंग, false claim, and that what they did. कॉर्पोरेट्स को अगर आप पैसा कमाने का मौका दोगे गलत तरीके से चाहे अच्छे तरीके से,
वो तो कमाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। नाउ एंटर्स द थर्ड पर्सन इन द पिक्चर, एंड्रू फेस्टॉव। कहने को तो इस पर्सन को सबसे कम सजा मिली तीनों में, जेफरी स्किलिंग्स, केनेथ ले और एंड्रू फेस्टॉव, ये तीन मास्टरमाइंड्स थे, बट सबसे कम सजा एंड्रू फेस्टॉव को मिली थी। बट टू बी ऑनेस्ट, if Jeffrey Skilling was devil, Andrew Faustov was right hand to the devil. He was as guilty as anyone. Three Musketeers, bilkul. They were actually called Three Musketeers of Wall Street, or in jokingly as Three Darlings of Wall Street, because they always delivered whatever Wall Street asked. They delivered. Now, let's learn something about Andrew Faustov. You can say he was often described by the people who know or the employees as a person having no moral compass. He was not at all considerate about whether you are feeling ill, whether you want to take a leave, whether your hand is broken, whether something mishap has happened in your life. He just wanted you to work for him and make him money. That's it. His contribution came in the form of setting up of off-sheet balance sheet items, or also known as SPVs. What are SPVs or SPEs? Special purpose vehicles or special purpose entities. कोई बात समझाऊं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली बार ये टर्म सुनिए ना, तो ये समझ लेना कि वर्ल्ड में आज भी अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट की लॉन्ड्रिंग अगर किसी तरीके से होती है, या मनी लॉन्ड्रिंग किसी तरीके से होती है, या प्रॉफिट की अपन कह लो कि अपन कहते हैं ना कि पैसा इंडिया से बाहर ले जाना है किसी को, तो कैसे ले जाए विदाउट मेकिंग टैक्स अथॉरिटीज लुक इनटू इट। एसपीवीज और एसपीईज आर द मेथड। ठीक है, देखेंगे कैसे क्या होता है इनके बारे में। एंड्रू फॉस्टॉव ऑल्सो सेटअप अ फ्रॉडुलेंट फर्म, उसकी खुद की थी बट उसके नाम पे एस्टैब्लिश नहीं करी, किसी और के थ्रू कर पाई। ठीक है, बाय द नेम ऑफ LJM इन्वेस्टमेंट्स। LJM investment later proved to be one of the key firms in the investigation that led up to the eventual bankruptcy and conviction. And it was alleged that he made somewhere around $45 million in profits from the said LJM investments. It was also found that 96 bankers who have loaned money to Enron Corporation for their numerous projects has also invested in LJM investments. So it was clear that bankers were also involved in the grander schemes. Okay. And later it would lead to the many bankers linked to JLM going to jail. One of the interesting connections that Andrew Fastow has was this Merrill Lynch. अब जिन लोगों ने अगर 2007 का सिक्योरिटाइजेशन की नहीं, सिक्योरिटाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन जो था वो 2007 का जो आपका ग्लोबल रिसेशन आया था इसकी वजह से, उसमें हुआ था। ठीक है, और मेरिल लिंच उसमें भी इन्वॉल्व था। मेरिल लिंच जो एक फर्म है, यू कैन से दीज आर द बैंकर्स ऑफ द 1% ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड, मेरिल लिंच विल can offer you services. You can say it only offers services to the individuals who have net worth of upwards of $100 million. At least $100 million की अगर नेटवर्थ है आपको, तो मेरिल लिंच आपको सर्विसेज ऑफर कराया करती थी। बाकी वो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते। ठीक है, तो मेरिल लिंच वंस बॉट 3 नाइजीरियन बार्जेस मतलब कंटेनर शिप, जो फ्लैट बेड कंटेनर शिप्स होते हैं, उनको उन्होंने बाय करा था फ्रॉम एनरॉन एंड सोल्ड देम बैक 5 months later, just to help Enron cook the books and show that they have enough cash short term के लिए। शॉर्ट टर्म में कैश वेरीफाई करने के लिए ये जो मेथड है, ये काफी सारी फर्म अप्लाई करती है। इसे आप लोग, हाँ बिल्कुल वही, एक पॉकेट से लेना दूसरी पॉकेट से फिर से लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये काफी सारी फर्म्स आज भी करती। रिसेंटली अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो काफी सारी एयरलाइन इंडस्ट्रीज ने इस चीज को इसी टाइप की चीज को एक्सरसाइज करा था इन द फॉर्म ऑफ के, क्योंकि पता था प्लेन तो चलने वाले हैं नहीं। ठीक है, काफी दिनों तक लॉकडाउन है तो क्या करें, तो अब कॉस्ट तो है भाई, आपने अगर एक प्लेन ले रखा है तो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने उन्हीं प्लेन्स को इन्वेस्टमेंट फर्म्स को लीज कर दिया कि आप हमसे खरीद लो, और उनसे वापस से लीज बैक पे ले लिया। ठीक है, तो सेल एंड लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। ये उसका थोड़ा सा और सेल एंड लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगल until a certain point. ठीक है, ये उस फाइन लाइन को क्रॉस कर रहे थे ट्रांजेक्शन, बट इट वाज अ थिंग। एनरॉन कॉर्पोरेशन वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दिस whenever they needed money or they wanted to show money, और क्वार्टर एंड का रिजल्ट आ रहा है या ईयर एंड का रिजल्ट आ रहा है, they would always
find some assets to sell for short term, get the cash, ठीक है, pay some interest and get back the asset the next year, ठीक है, और ये उनका फिक्स था. But the thing is कि in real life around the world जितने भी projects जो एनरॉन गैस कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर रही थी, they were all losing money in some way or the other. अब बोलोगे सर कंपनी अगर इतना पैसा गवा रही है तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बैलेंस शीट के अंदर लोन्स तो बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, भले प्रॉफिट है बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई डेट दिख रहा है, और किसी कंपनी का डेट ज्यादा होता है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी थोड़ी खराब काम कर रही है. किसी के दिमाग में आया ये? नहीं था, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डेट रेशियो बिल्कुल भी हाई नहीं था, असेट्स बहुत ज्यादा थी, डेट्स नहीं थी. एंटर द वर्ल्ड ऑफ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स और स्पेशल पर्पस एंटिटीज. ऑन अ साइड नोट, अगर तुम लोग इस काम को सीख लो कि हाउ टू सेट अप एंड ऑपरेट एसपीवीज इन अ लीगल वे, ऑब्वियसली it is a field of work where finance professionals can earn the most amount of money. Obviously you need to have proper contacts, you need to know the proper laws of different countries, you need to have proper experience with dealing with different countries. Now what are SPVs? Just imagine, just an example. Let's say क्या ना आपको एक कंपनी सेटअप करनी है, एसपीवी एंड एसपीई, स्पेशल पर्पस एंटिटीज या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स. नाउ व्हाट आर दीज? देखो सबसे पहले नाम से पता पड़ रहा है स्पेशल पर्पस, तो दे आर मेड फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली. ठीक है, लेट्स से अभी रिसेंटली का केस था, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है बट एट प्रेजेंट इंडियन नहीं है, इट इज नाउ सीन एज एन इंडोनेशियन कंपनी. उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया. कैसे? उन्होंने एक स्पेशल पर्पस एंटिटी सेटअप करी. नहीं, वॉलमार्ट के साथ में तो अलग डील होगी, वॉलमार्ट वाली डील अलग है, ठीक है ना. दे हैव चेंज देयर नेशनैलिटी, दे आर नो लॉन्गर एन इंडियन ओरिजिन कंपनी, दे आर इंडियन ओरिजिन कंपनी बट दे आर नो लॉन्गर एन इंडियन कंपनी. उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्पेशल पर्पस एंटिटी एस्टैब्लिश करी. हाँ, जैसे सत्यम ने माइटस एस्टैब्लिश करी थी, बिल्कुल सही. बट माइटस वाज नॉट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ प्रॉपर एसपीवी, क्योंकि एसपीवीज के साथ में ना एक बहुत ही पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक होता है. एसपीवीज आर ऑलवेज मेड इन टैक्स हेवन कंट्रीज. आप कोस्टा रिका में जाके उसको रजिस्टर कराओगे, बर्मुडा में जाके रजिस्टर करवाओगे, मालदीव्स में जाके रजिस्टर करवाओगे, क्रोएशिया में जाके रजिस्टर करवाओगे. यू विल ऑलवेज गो एंड रजिस्टर देम इन कंट्रीज दैट हैव मिनिमम टैक्स लॉस, ताकि टैक्स पे करना ना पड़े, क्योंकि उनका मेन काम टैक्स बचाना होता है. टैक्स बचाना या मनी, एक तरह से मनी साइफन करना. ठीक है, तो हाउ एसपीवी वर्क्स आर सिंपल. भाई ऐसे मान लो आपके पास में ना, आपको पता है कि मेरे को ना एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है अमेरिका में. ठीक है, लेट्स से 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला. अब वो 10 करोड़ रुपए इंडिया में लाओगे तो पहले तो अमेरिका वाला टैक्स ले लेंगे और फिर बच्चा को जो इंडिया वाला टैक्स ले लेंगे. ठीक है, तो अराउंड 33% टैक्स में पे हो जाएगा. अब 10 करोड़ का 33% के आसपास देखोगे तो अराउंड 3.5 करोड़ रुपए चलेगा या 3.3 करोड़ चलेगा. तो मेरे पास है 6.7 करोड़. 10 करोड़ में से 3.3 करोड़ का टैक्स लग गया. ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा. क्या कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट स्टेप, फाइंड अ कंट्री दैट हैज मिनिमम टैक्स लॉस और नो टैक्स लॉस एंड हैज एन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद यूएसए. मतलब अगर आप एक ऐसी कंट्री में से हो जिसका इसके साथ में यूएस का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, तो होगा क्या, यूएस टैक्स लेने से मना कर देगा. वो बोलेगा वो जो दूसरी कंट्री है जहां से तुम आए हो वो टैक्स ले लेगी, हम टैक्स लेंगे नहीं, या लेंगे तो बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पे लेंगे. ठीक है, तो फाइंड अ कंट्री जिसके साथ में यूएस का एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो, स्पेशली रिगार्डिंग योर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. मान लो हमें मिल गई, हमें पता पड़ा कोस्टा रिका के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट है. नाउ गो टू कोस्टा रिका, spend $1 million, you will get the you can say residential status of that. जैसे लंदन में होता है, लंदन में जाके $10 मिलियन पाउंड खर्च कर दो तो आपको लंदन का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है. ठीक है, वैसे ही कोस्टा रिका जाओ, $1 मिलियन खर्च करो और आपको वहां का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिल जाए. ठीक है, नाउ वहां के कुछ लोगों को हायर करो और एक
पार्टनरशिप फर्म कह लो या कंपनी कह लो या एलएलपी कह लो, जो तुम्हें लगता है तुम ओपन कर सकते हो उसको ओपन करो, एंड नाउ टेक द कॉन्ट्रैक्ट और जो प्रोजेक्ट जो भी है वो उस स्पेशल पर्पस एंटिटी के नाम पे लो। ना हो क्या रहा है, काम तुम कर रहे हो, मैनेज तुम कर रहे हो, बट पैसा इंडिया में नहीं आ रहा। यूएस से कोस्टारिका जाएगा, कोस्टारिका से तुम जहां चाहो वहां ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोस्टारिका से जब इंडिया में भी लाओगे पैसा तो नाउ इट इज ए रेमिटेंस, नॉट एन इनकम। यूएस से इंडिया में आएगी तो इट इज एन इनकम, बट यूएस से कोस्टारिका गई तब इनकम है, बट जब कोस्टारिका से इंडिया में रिइंबर्स करोगे पैसा को तो नाउ इट बिकम्स अ रीइंबर्समेंट, क्योंकि you are a legal citizen of Costa Rica, you have earned money in Costa Rica, so Costa Rican government can tax on it, can levy your tax on it. এটা খুললো my account, ठीक है। और फिर जब कोस्टा रिका से पैसा इंडिया में वापस लाओगे ना, इट विल बी टर्म्स एट रेमिटेंस या रीइंबर्समेंट, या रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इट्स लाइक कि सर हमने कोस्टा रिका में कमाया पैसा, अब इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया में लेके तो आएंगे ना यार, इंडिया में तो खर्चा करना पड़ेगा हमें, तो हम रेमिटेंस कर रहे हैं। जैसे तुमने पुणे में पैसा कमाया और उदयपुर ट्रांसफर कर रहे हो, तो वैसे तुमने यहाँ पे बस पुणे की जगह उसको कोस्टा रिका में कर लिया। It just saved you around 27 to 30% of tax, ठीक है। अरे यार क्या यार, भाई 3.5 करोड़ का टैक्स देना था, 50 लाख का टैक्स में अगर निपट जाओ तो ऑब्वियस ही बात है पैसा तो बचा ही है, भाई पैसा ही तो बचा ना एट द एंड ऑफ द डे। तो एसपीवी इस तरीके से काम करती हैं जहां पे आप मनी साइफन करने की कोशिश करते हो किसी तरीके से। नाउ बट जिस तरीके से एनरॉन ने एसपीवी को यूज किया था, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। किसी ने नहीं सोचा था कि एसपीवी को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इट वाज ऑल मतलब ऐसा कहते हैं कि एनरॉन के अंदर जब जेफरी स्किलिंग्स आए, जब एंड्रू फॉस्टो आए, तो इन सब ने अपना एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ टीम बना रखी, ठीक है। दे वर नोन एज द हीरोज, ठीक है। वो ऐसे एम्प्लॉइज थे जो मे बी पुराने सीनियर पार्टनर्स थे इन सम इन द बिग फोर्स एंड बिग फाइव्स, ठीक है। दे वर फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे वर मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। one of the executive of the Enron was the person who was on the board, which the board that advises gap the generally accepted accounting procedures. So जिस इंसान ने गैप बनाए हैं उस वही बंदा कंपनी के बोर्ड, कंपनी के एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठा हुआ, ठीक है। तो उसको खुद को पता है कि उसने खुद ने बनाया है लॉ एक तरह से। वो जो जब आप आईएफआरएस पढ़ते हो वैसे यूएस के अंदर गैप लगती है, तो वो जो गैप है वो उसने बनाया, वो अकाउंटिंग प्रोसीजर उसने बनाया, तो उसको पता है कि क्या लूप होल है। तो they were notoriously known for hiring such employees जो उनके लिए इस तरीके से लूप होल्स ढूंढ सके लॉ के अंदर, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस सेइंग्स थी जो केनेथ ले ने पब्लिकली बोली थी कि नो मैटर हाउ मेनी लॉज यू मेक, आई विल ऑलवेज फाइंड अ स्मार्टर पर्सन हु विल स्टिल फाइंड अ वे टू मेक मी मनी अराउंड इट, ठीक। तो अब इन्होंने कैसे यूज करा, लेट्स जस्ट ट्राई टू सी। देखो एनरॉन क्या करती थी कि उनके पास में जो प्रोजेक्ट आता था, जैसे उनके पास में मान लो इंडिया का प्रोजेक्ट है, अब इंडिया का प्रोजेक्ट उनको पता है कि यार हम तो कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, पैसा मिलेगा नहीं, क्या करें। तो जब उनको पता पड़ा कि अब इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लिया और एक एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नाउ एसपीवी के साथ में जो रूल्स थे इन अमेरिका वो सिंपल है, उस वक्त अब चेंज हो गया ऑब्वियसली। उस टाइम ऐसा था कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है या एलएलपी ओपन करी है और वो आप अगर उसमें आपका 3% से कम स्टेक है, if you hold 3% or less stake in a company, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होती, मतलब आपको उसको शो करने की भी जरूरत नहीं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो अगर आपने किसी कंपनी में 3% से भी कम इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसको, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी नहीं है तो लोगों को नहीं पता पड़ रहा है, तो क्या करते थे ये 97% ऑफ फंडिंग जो भी इनको चाहिए थी वो बैंक के थ्रू लेते थे, क्योंकि बैंकर्स तो इन्वॉल्व थे ही थे। तो बैंकर एसपीवी को पैसा देते थे, 3% पैसा ये खुद ही अपनी जेब से लगाते थे, ठीक है। और उस एसपीवी को वो जो असेट है जो खराब होने वाली है वो उसको बेच देते, एसपीवी इनको पैसा ट्रांसफर कर लेता था जो उसको बैंक से मिलता था, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सीधा प्रॉफिट बुक कर लेते। एंड द थिंग वाज दे वर नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग द असेट, दे वर आल्सो ट्रांसफरिंग द लोन एसोसिएटेड विद द असेट। मान लो आपने इंडिया में जो प्लांट लगाया उसके लिए आपने 100 करोड़ का लोन लिया, तो प्लांट प्लस 100 करोड़ का लोन दोनों आपने ट्रांसफर कर दिया एसपीवी को, जो नेट वैल्यू है वो आपने अपने प्रॉफिट की तरह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बुक कर ली ऑन सेलिंग ऑल्सो, ठीक है। और वो जो एसपीवी है वो अब उस डेट को भी लेके बैठा हुआ है और उस एसेट को भी लेकर के बैठा हुआ है। अब वो कल को ऑब्वियसली बात है एसपीवी का काम होता है आगे जाकर डिसॉल्व हो जाना,
ठीक है, और बैंक का काम होता है उस पैसे को एनपीए नोट करना कि वो पैसा नहीं मिल सकता, बैड एसेट। हेलो। ठीक है, हेलो। बेटा आई एम एसपीवी, रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, ये इनकन्वीनियंस बिटवीन, सॉरी सर। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइक कोई। हाँ जी बेटा, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स या स्पेशल पर्पस एंटिटीज, एसपीई या एसपीवी। तो सिंपल, आपने एक फर्म सेटअप करी, ठीक है, आउटसाइड अमेरिका या समथिंग, इन अमेरिका भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उस टाइम तक तो, ठीक है। आपने स्टैब्लिश करी, स्टैब्लिश करने के बाद में आपने बोला कि आप मेरी असेट प्लस उससे रिलेटेड डेट आपने उस कंपनी को बेच दिया, तो असेट भी गई, डेट भी गया, एक नेट अमाउंट आपको मिल जाता था जो आपने अपने प्रॉफिट की तरह बुक कर लिया। उस फर्म के पास में आपका वो डेट और आपकी एसेट पड़ी, अब वो अगर उस एसेट से कुछ पैसा कमा सकती है तो कमा लेगी, नहीं कमा सकती है तो एनपीए बुक हो जाएगी, काम खत्म, डिसॉल्व हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, काम खत्म, आपको अपना पैसा मिल गया। तो एनरॉन इस तरीके से अपने डेट्स को हाइड करता था, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी डेट हाई नहीं हुआ, जो कि कह सकते हो कि एक रेड फ्लैग होना चाहिए था लोगों के लिए, कि क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर है या एज अ होल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या नेचुरल गैस सेक्टर आप देखोगे तो बहुत ही कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, आपको बहुत ही ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है तब जाके आगे जाके फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, आपको पावर ग्रिड बनानी पड़ेगी, आपको पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बिछानी पड़ती है, तो इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, और ऑब्वियसली बात है ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा लोन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट एनरॉन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना ही लोन दिखाया जाता था जितना जरूरत पड़ती है, जितना उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के लिए ठीक लगता था, उससे ज्यादा कभी। दिस वाज अनदर थिंग। तो दो चीज होगी, एक मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड, सेकंड एसपीवी, बट नथिंग केम क्लोज टू द थर्ड थिंग दैट एनरॉन वाज नोन फॉर। सर इससे भी ज्यादा कुछ और हो सकता है क्या? अभी रुको यार, वो तो स्टार्ट। बेटा बैंकर्स तो मिले हुए थे ना, बैंकर्स को क्या चाहिए था? बैंकर्स को तो ये चाहिए था कि भी हमारा पैसा कैसे भी करके चुका दो तुम, या फिर हमें कमीशन दे दो। बैंकर्स वर हैप्पी, वो अर्निंग कमीशन, उनको अंडर टेबल पैसा मिलता था, वो से खुश थे। सॉरी, मैं गलती से एस्केप हो गया। हाँ जी, अब एंटर्स द पिच। कैलिफोर्निया से पहले एक और चीज आपको समझनी बहुत जरूरी। In 1999, 1998, sorry, in 1991, Enron established a new firm by the name of Enron Finance Corporation. Enron ने अपनी एक सब्सिडरी स्टार्ट करी by the name of Enron Finance Company या Finance Corporation, और उसका सीईओ बनाया जेफरी स्किलिंग्स को। इस कंपनी का काम सीधा साधा, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मार्केट प्लेस जहां पे लोग आए और एनर्जी सेक्टर के फ्यूचर्स में डील कर सके, क्योंकि आप लोग उन फ्यूचर्स पे नेस्डैक में डील उस टाइम पे नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक प्राइवेट स्टॉक मार्केट बनाया था। मेरा स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन पे कोई लिखा हुआ नहीं, अभी लिखा हुआ बाद में आएगा, अभी सिर्फ खाली स्क्रीन। बेटा नीलेंद्र, इंडिया में देखा है वो जो रिसेंटली आपके दो लक्ष्मी विलास बैंक और इनके जो केसेस हुए थे, तो उसमें भी तो पैसा लोगों के था, तो भी क्या बैंकों को कोई फर्क पड़ता है क्या? 2007 का पूरा स्कैंडल पढ़ना, पूरा जो आपका रिसेशन है, ग्रेट रिसेशन ऑफ 2007, उसके पूरा केस स्टडी पढ़ना, आपको पता पड़ेगा कि देयर वर अराउंड अराउंड ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल ऑलमोस्ट 35 बैंक्स थे जो उस पूरे के अंदर बंद हो गए थे। बेटा हर रूल्स के जो भी रूल है उसको फॉलो करके जितना बेयर मिनिमम है ना उतना काम कर लेते थे, कि भाई अगर इतना बेयर मिनिमम करके हम इस चीज को पास करा सकते हो कर सकते। अभी रिसेंटली आपने देखा ही है यार, अपने पीएनबी बैंक का जो केस आया हुआ है, नीरव मोदी का चल रहा है, तो वो भी तो हुआ ही है ना। ठीक है, आपके जो आईसीआईसी बैंक का केस है, ठीक है, आपके पीएनबी बैंक का जो केस है, तो ये सब होते ही है ना, तो बैंकर्स चाहे तो कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट अराउंड तो सब काम कर सकते। बताऊंगा वैभव, आगे चल के बात करेंगे इस बारे में। बेसिकली सिंपल है, आप ना इंटरनेशनल न्यूज के बारे में पढ़ते रहो थोड़ा सा,
थोड़ा सा या तो कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है ऐसा, ठीक है, बट हाँ एक आध दिन मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे आपको मिल सकता है। चलो, तो एनरॉन established a trading platform by the name of Enron Online, and this was one of the most shadiest thing that you can imagine. After they started trading in futures of you can say crude oil, you can say natural gas, electricity, but further on they started trading weather. Yes, the weather. They started trading futures on weather, that whether it would rain today or not, whether it would rain in the 1 month or not, what would be the temperature of California, what would be the temperature in Washington, how much snow will fall this year. They were trading in weather futures and it was allowed. Just imagine, तुम एक तरीके से सट्टा लगा रहे हो किस पे, वेदर के ऊपर, एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि वो क्या है, वो वर्क कर सकते थे, वो एज ए ट्रेडेड ब्रोकर टू ब्रोकर्स काम करते थे। तो बेसिकली ये कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको उनके थ्रू जाना पड़ेगा, दे वुड अर्न द कमीशन। अरे कूलर तो नहीं बाहर करके इतना करते ना, नहीं आदमी के अंदर ही हवाई चलानी है अंदर। अब देखो कैसे, तो परमिशन लेके ऑब्वियसली एसईसी ने वो अप्रूव कर लिया था कि हाँ भाई चलो वेदर फ्यूचर्स भी करेंगे, और इसी वजह से from 1995 to 2001 Enron was named as the one of the most innovative companies by Fortune 500, but in the Fortune 500 list. तो आप सोचोगे यार सर क्या किसी को भनक नहीं पड़ी क्या कि यार ये सब कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है? पड़ी। There was a reporter by the name of Bethany Macklin, उसके बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट देखो होता क्या है ना कि कभी कभी आप जब वो कहते हैं ना कि इफ यू पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, समटाइम्स इट कम्स क्लीन, समटाइम्स इट डजंट, और हर बार करना भी पॉसिबल नहीं होता। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद एनरॉन। हर बार एसपीवी सेटअप करके असेट्स को सेल करना इतना आसान हो नहीं रहा था, ठीक है। हाँ वो नहीं, वहां की सुचिता दला, हाँ लविश कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो अगर पता है कि पैसा तो कमाना है, क्योंकि हमारी उनकी कंपनी का मेन जो काम है, जो जिस पे टिकी हुई है वो है पैसे, तो अब कैसे कमाए? तो here comes the next golden opportunity that they you can say grabbed with both hands. It was the Golden State California. एक बहुत ही ऐसे मतलब कहते हैं कि आप एक मीटिंग थी जिसमें ले और फॉस्टो दोनों ये अपने एक्टिविटीज में बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग यार कैसे अब करे, क्योंकि पैसा तो बन नहीं रहा है, और जो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड है उसकी भी कुछ तो लिमिटेशन है ही है, बट हमने सारा जितना हो सकता है उतना तो उसको यूटिलाइज कर लिया, और एसपीबीज का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अब क्या लोगों को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट लेते हैं और फिर बेच देते हैं एसपीबी को, प्रोजेक्ट लेते हैं और फिर एसपीबी को बेच देते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उनको लग रहा था कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है, कि यार एसपीबी से वो है ना, ये अभी के लिए ठीक है बट ये हमेशा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उन्होंने पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ में मर्जर करा था इन कैलिफोर्निया, ठीक है, इन 1998, ठीक है। बट what this merger gave them was access to the whole Californian grid. Now अगर आप यूएस के बारे में जानते हो तो कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आल्सो। सबसे ज्यादा मिलियनियर्स या बिलियनियर्स आप कह लो तो कैलिफोर्निया में रहते हैं वर्ल्ड वाइड, सारे वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स को ले लो तो कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स रहते हैं, ठीक है। आपका हॉलीवुड टाउन जो आप कहते हो, जो सारी चीजें वो सारी चीजें आपकी कैलिफोर्निया वाले एरिया में, ठीक है। तो इट्स अगर कैलिफोर्निया की के अंदर कोई भी इंसान कोई बिजनेस करता है एक तरीके से, ठीक है, तो वो बिजनेस ऑब्वियसली बड़ा है, उस लेवल का है। इनको पूरा एक्सेस मिला था कि आप चाहो आप अपने हिसाब से जो कैलिफोर्निया का पूरा ग्रिड है उसको कंट्रोल कर सकते। एंड जस्ट आफ्टर द मर्जर सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। पीपल नोटिस कि कैलिफोर्निया के अंदर कभी भी बिजली नहीं कटती थी, बट जस्ट आफ्टर द मर्जर, फ्यू डेज आफ्टर द मर्जर, देयर वर रोलिंग ब्लैकआउट्स, अनअनाउंस्ड ब्लैकआउट्स that lasted for several hours. अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली एक केस आया था
कि न्यूयॉर्क के अंदर लाइट चली गई थी 8 घंटे के लिए और लोगों को तारे दिख गए, जो प्रॉपर तारे होते हैं ना वो दिखने लगे। तो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया स्टेटिंग कि हमें यूएफओ दिख रहा है। उनको आदत नहीं है कि इतना साफ आसमान कैसे दिखे, ठीक है। वहां पे बिजलियां नहीं जाती अपने जैसे, अपन कहते हैं ना कि वो राज कटौती है, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब कैलिफोर्निया सोचो ना, लोगों को लग रहा है रोज यार बिना बात के बिजली कट रही, कभी कभी बहाना बना रहे हैं कि मेंटेनेंस है, कभी कुछ कर रहे हैं। बट व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग वाज एनरॉन मैनिपुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। सर कैसे? सिंपल, आपने बिजली बंद करी, जैसे ही बिजली बंद करी मार्केट में बिजली की डिमांड स्टार्ट हुई, मार्केट में बिजली की प्राइस अप जाने लगी। जब आपको लग गया कि प्राइस सफिशिएंटली अप हो चुकी है फ्रॉम द रेगुलर बेस प्राइस, आपने वापस बिजली प्रोवाइड कर। आप पहले बिजली प्रोवाइड करके मान लो $1 किलोवाट कमाते, तो अब क्योंकि आपने बिजली बंद करी, डिमांड बढ़ रही है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो लोग एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो जाएंगे। लोग नहीं पे करेंगे, ऑब्वियस बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनीज है, जो एनरॉन की ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेगी, वो उनको एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाएगी, एंड देन दैट कंपनी वुड चार्ज दैट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अमाउंट। इट वाज एस्टिमेटेड दैट ये जो 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कैलिफोर्निया के जो लोग हैं उनको $30 बिलियन का नुकसान हुआ फ्रॉम दिस ब्लैकआउट्स। $30 बिलियन का नुकसान। अब बोलोगे सर सरकार क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सिंपल सा, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ये हमारा मैटर ही नहीं है, इट्स अ फेडरल गवर्नमेंट मैटर, यूनियन लिस्ट का मैटर है। अपने चलता है ना ऐसे कि कितनी बार सरकार कहती है ये हमारा मैटर नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी इसके बारे में। सेम वैसे ही वहां की सरकार ने भी कहा कि हमारा मैटर नहीं, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर। एंड जस्ट इमेजिन या गेस हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, जिनके पिताजी कैनिथ ले के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पूछा गया कि व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवेनिंग इन द कैलिफोर्नियन दिस प्रॉब्लम। उन्होंने सीधा कहा कि आवर एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट बिलीव इन इंटरवेंशन वुड सॉल्व एनीथिंग। उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर मैं इंटरवीन कर भी लूंगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। ऑब्वियसली तुम्हें पता है रीजन, हमें भी पता है क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन पता है इससे एक चीज अच्छी हुई, जब लोगों को पता पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो लोगों ने अपना गवर्नर चेंज करा। कैलिफोर्निया का जो गवर्नर था वो चेंज हुआ, एंड एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम आवर चाइल्डहुड बिकेम द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। एंड तुम गेस नहीं कर सकते उसको, इतनी गारंटी। He was none other than the Terminator, Arnold Schwarzenegger. People elected Arnold as the new governor क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो इस डील्स को इस प्रॉब्लम से डील करेंगे। द टर्मिनेटर गाय, ऑब्वियसली दैट। And he did, obviously. The moment he joined office, he tried to force the federal government, he tried to force the Senate, and Senate finally intervened in 2000, and they banned Enron. They cancelled the contract of Enron as per se. But 1 साल के अंदर Enron ने बहुत पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी शेयर प्राइसिंग 1 साल में 78% बढ़ चुकी, ठीक है। They have posted the record revenue of $101 billion. Just imagine, you are playing with people. Company is actually playing with the lives of the people. It is estimated that somewhere around 150 people lost their lives because of not having electric because of the rolling blackouts. कुछ लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज टाइम पे नहीं मिल सकी। Some people बिजनेस को लॉस तो होना ही था, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। मॉल्स वगैरह ये सब इन्होंने सफर करा, बट द मेन थिंग वाज यू आर प्लेइंग विद द पीपल्स लाइफ। You are not just cutting electricity, you are cutting electricity from the whole city at a time. देखो चल रहा क्या कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली यार किसी को तो आवाज उठानी थी। तो one reporter at the Fortune magazine got wind of a few things that was happening at the Enron, and she started asking questions. Famously, in a telephonic interview with Jeffrey Skillings, she asked, just tell me how Enron actually makes money. How does Enron earns money?
And Jeffrey Skilling's reply was, he couldn't answer because he was not an accountant. You are the CEO of the company and you are asking, I can't answer this question because I am not an accountant. और तुम कंपनी के CEO. ऑब्वियसली बात है, उनको पता पड़ा कि यार ऐसा अगर करेंगे तो मतलब जो आंसर दे दिया उससे रिपरकशंस थोड़े ज्यादा हैं. तो नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, Jeffrey Skilling sent a full team of the best accounting या finance guys of his company, including Andrew Fostoff, then CFO, to answer the question, answer her questions. 3 घंटे बैठे, ऑफिस में बातचीत चली, ठीक है. उनको बताया कि देखो ऐसे ऐसे काम चलते हैं, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये हमारे एरियाज ऑफ वर्किंग है. उसको कुछ समझ नहीं. Bethany, in a later interview in 2006-2005, after the case was settled, she said that, expressed that even after sitting there and pondering over the document for 3 months, even after this meeting, 3 months तक वो बैठी रही उन documents को देखती रही, she couldn't make single sense of how this company was making money. Even funnier, when the auditors would ask, तुम्हें कैसे पता नहीं पड़ा? The senior manager of the audit replied, I couldn't understand a single journal entry that they passed. The senior manager of the audit team answered this. इतने complex transactions बना रखे थे जानबूझ के. And this was the whole team. There was a whole department, whole team behind this at Enron that used to make sure that every contract, every transaction was turned upside down, churned into something which nobody could make sense of. No general person or a normal human being with not enough knowledge of finance or experience in finance could make sense of it. Even SEC ने जब 1995 में इनकी ऑडिट करी थी, कि SEC जो है वो हर कंपनी की ऑडिट करती है, ठीक है, जो भी लिस्टेड कंपनी है. जब वो उनके लोग आए थे ऑडिट करने के लिए, ठीक है, उनको भी समझ में नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है. And they just wrote a normal report कि okay, हो रहा है जो हो रहा है, चलना क्या कर सकते हैं, ठीक है. But the thing was, Andrew Fostoff, when he was leaving that meeting, Nishta, Sarbanes-Oxley Act was introduced after the Enron case. This was the case that introduced Sarbanes-Oxley Act. आएंगे उसके ऊपर, टेंशन मत. There are 2 interesting facts remaining, बस उसके बाद आएंगे, टेंशन मत, ठीक है. Andrew Fostoff turned around to the reporter and said, I don't care what you write about the company, just don't make us look bad. He was only focused about the image of the company. But वो कहता ना कि यार कभी ना कभी तो चीजें खराब होनी है. देखो ये केस ना, not just this case is not important just in the face कि आपको पता पड़ता है कि किस तरीके से लोग ना corporates आज भी या पहले भी कर चुके और आज भी इन तरह की चीजें कर रही. तो एज द ऑडिटर्स आपको क्या करना है. बट द थिंग, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग या इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस केस इज, जैसे आप लोग बिग 4 सुनते हो ना, देयर वाज अ टाइम बिफोर 2004 until 2004 it was not big 4, it was big 5. There were 5 big auditing firms. 5th का नाम जिन लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है वो मत कहना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है क्या पता है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है उनको मैंने बता रखा है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा किसको आइडिया. बिग 5 हुआ करते थे एक टाइम पे. अभी तुम जैसे KPMG, डेलॉयट, PwC और EY कहते हो ना, तो 5 ही एक और फर्म थी उस लिस्ट के अंदर. आर्थर एंडरसन, बिल्कुल सही. Arthur Andersen was once considered as the 5th part of this big 5, but इस केस के बाद में Arthur Andersen was dissolved. तो ये कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा नहीं डूबा, इसने पूरी एक बिग 5 डुबो दी है. इमेजिन द स्केल, एक बिग 5 डूबी है एक केस के चक्कर. एंड सेकेंडली, this was the start, this was the case that triggered the you can say the resurgence or the changes that took place in the auditing field. काफी सारी कंट्रीज ने इसको नोटिस करा. यूएस ने इसके लिए सार्बर्स-ओक्सली एक्ट पास करा, देखेंगे वो क्या होता है. अभी यूके में भी पास होने वाला है, अगर कोविड नहीं होता तो अब तक पास हो चुका होता, ठीक है. इंडिया में भी उसका एक वर्जन चलता है, ठीक है. लेकिन बाकी सारी जो कंट्रीज है दूसरी, उनके अंदर आप देखोगे अपने इंडिया में कारो, द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑर्डर,
ऑर्डर वो भी इसके बाद पास हुआ था। यूके के अंदर कॉसो वाज पास्ड आफ्टर दिस, ठीक है। सो इस केस के बाद में वर्ल्ड वाइड ये चीज तो समझ में आ गई थी कि आपको ऑडिटर्स और मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट जो अपन ने बचपन में पढ़ा था कंपनी के साथ में कि देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है ना। आप कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट को एक नहीं मानते हो, अगर कंपनी में कुछ घपला हो रहा है तो मैनेजमेंट बच जाता है। उस व्हील को हटाने की जरूरत थी, ये सबको पता पड़ चुका है, ठीक है। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? It began in somewhere around the end of 2000. One day, Jeffrey Skilling, then CEO, came into office and he was he looked at, he had not shaven in a month. His eyes were red, swollen, dark circled. Okay. He was yelling at everyone. It was the pressure of trying to keep making money for the firm was getting to him. He was turning into a complete psychopath. People used to describe him as a living, walking, talking zombie, a money making zombie. ठीक है, तो उनको लगा कि यार अब ना एक पॉइंट आ गया कि अब कब तक मैं ऐसे ही करता रहूंगा। आई हैव मेड इनफ मनी, ठीक है, आई हैव मेड मिलियंस, आई हैव डन अ लॉट फॉर दिस कंपनी, एंड ही अब्रप्टली रिजाइन्ड ऑन February 12, 2001. ऑब्वियसली आफ्टर ऐसे रिजाइन नहीं करा था, बैक स्टोरी ऐसी थी कि he tried to warn Kenneth Lay कि people are trying to get wind of everything that we are doing, let's just try to cover it up in some other way, and Kenneth Lay was not ready for that, so they had a fight and he left. अब आप बोलोगे सर फरवरी में हुआ तो क्या फर्क पड़ा? बेटा जिस दिन न्यूज आई थी ना कि जेफरी स्किलिंग कंपनी छोड़ के जा रहा है, कंपनी के शेयर 70-75 की रेट से गिरना स्टार्ट हुए, जो गिरते गिरते 35 तक आ गए, ठीक है। On 14th August 2001, Skilling resigned suddenly and Lay takes over once again. Enron's broadband division also reported a massive 137 million loss. Analysts became wary of the company and subsequently dropped their rating for the Enron stock. In turn, the company's share price dived to 39.95, a 52-week low. Arthur Andersen, legal counsel, tells auditor to destroy all Enron files except Enron's most basic document. This was the इसके ऊपर ना पूरा एक वो है, आप जब आर्थर एंडरसन को अलग से स्टडी करोगे तो you'll find out कि कुछ मेल्स मिले थे बाद में, जिसमें मेल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव्स जो सीनियर पार्टनर्स वगैरह है उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भाई जितना डेटा है सब जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, घर ले जाओ, ठीक है, पानी में फेंक दो, हमें नहीं पता बट गायब हो जानी चाहिए फाइल, ठीक है। क्योंकि एसईसी आ रही थी उनके 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 ऊपर उनको चेक करने के लिए कि क्यों आपको चीज समझ में नहीं आ रही है वो सब, तो उन्होंने कहा कि उनको पहले ही पता पड़ गया कि देखो अब क्या है, शिप डूब रहा है, ठीक है, अपन भी डूबेंगे, उससे पहले अपने को बचाने की सारी कोशिश की जा सकती है। द नेक्स्ट क्वार्टर एनरॉन रिपोर्टेड 100 SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, वो बेसिकली अमेरिका का सेबी है, जैसे इंडिया में सेबी होता है वैसे अमेरिका में SEC होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। इतने दिन क्या कर रहे थे, इतने दिन दूसरे प्रेसिडेंट थे ना, प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुए थे, ठीक है। तो Enron reports a $680 million loss and $1.2 billion value written off from the और इसके बाद में और इसकी स्टॉक प्राइस और गिरने स्टार्ट हुई। Enron announced it facing a SEC probe 22 अक्टूबर 2001 में जाकर के SEC ने probe स्टार्ट करा। Shares fall around to $20.75 that day following the announcement. Enron admits it has been inflating its income by around 586 million since 1997. Arthur Andersen became another casualty of the Enron scandal as the SEC expanded its investigation. On 2nd December 2001, within 9 months, Enron files for Chapter 11 bankruptcy. Its stock closes at $0.26. 9 महीने 10 साल पुरानी कंपनी जिस इतने बड़े वैल्यूएशन पर थी, 9 महीने में चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल करी। Aftermath was so huge. Shareholders lost around $74 billion. It was estimated that Enron owed its lenders, creditors, and employees a combined worth of $67 billion. In May 2004, more than 20,000 of the Enron's former employees won a suit of $85 million for compensation for $2 billion that was lost from their pension funds. From the settlement, the employees
each received about $3,100. सबसे पता है खराब चीज क्या थी एनरॉन की, जो इस पूरे केस में जो लास्ट में समझ गई। देखो हर कंपनी को ना, जो बड़ी कंपनी होती है, जब आप ज्यादा एम्प्लॉय को रख रहे होते हो तो आपको एक पेंशन फंड बनाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कह लो या एम्प्लॉयज पेंशन फंड कह लो, आपको उसके अंदर अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नाउ देयर इज अ ऑप्शन, कंपनीज चाहे तो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के जो स्टैब्लिश प्रोविडेंट फंड है, जो स्टेट स्टेट ऑथोराइज्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोविडेंट या पेंशन फंड है, आप उसमें पैसा जमा करा सकते हो, या तो या आप चाहो तो खुद का एक रजिस्टर्ड पेंशन फंड ओपन कर सकते हो। एंड द थिंग वाज, एनरॉन ने अपना खुद का एक पेंशन फंड स्टार्ट करा, एंड व्हाट दे वर डूइंग वाज कि उस, क्योंकि पेंशन फंड क्या करते हैं, पेंशन फंड वापस जाके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों में, उससे इंटरेस्ट कमाते हैं, उससे वो पेंशन फंड को ग्रो करते हैं, फ्यूचर में जाके एम्प्लॉयज को पेंशन पे करते हैं। What they were doing was they were investing the money of their employees, the pension money of their employees, into the SPVs. They were buying the shares of the SPVs. They were siphoning the money into into different SPVs. So ये allowed नहीं. It is one of the most, जो केस फाइल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सजा अगर किसी वजह से हुई उनको तो इस पॉइंट की वजह से, बाकी सारी चीजों के लिए इतनी सजा नहीं हुई थी, इसके लिए, ठीक है। यूएस के अंदर अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट पेंशन फंड के साथ में इस तरह के काम करते हो तो 7 साल की सजा होती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो जितनी भी सालों की सजा सबको, उसमें से 7 साल तो सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। और यूएस में सिस्टम क्या है, ये कंबाइंड सजा मिलती है, मतलब आपको अगर 3 चीजों के लिए गिल्टी पाया गया, एक के लिए सजा 3 साल है, एक के लिए 4 साल है और एक के 5 साल है, तो आपको कंबाइंड मिला करके 12 साल की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कहोगे, अच्छा इंडिया में तो क्या होता है मैक्सिमम सजा जो पॉसिबल वो दे देंगे, तो इंडिया में 5 साल की सजा मिल जाएगी, बट यूएस के अंदर तीनों मिला के कंबाइंड सजा मिलती है, ठीक है। तो पेंशन फंड के साथ में जो ये काम करते थे वो सबसे खराब काम, ठीक है। लास्ट आर्थर एंडरसन, क्या हुआ इनके साथ, देखो यार, एंड्रू फॉस्ट्रो जो था ना, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, then partner of Arthur Andersen LLP, by the which his name was David B. Duncan. It was set, in 2000 Arthur Andersen की जो फीस थी, ऑडिट फीस, that was around $25 million, and they also earned $27 million in consultancy fees from Enron in 1 year. 25 million as audit fees and 27 million as consultancy fees. Just convert this one, एक बार convert करके देखो, 180 करोड़ रुपए तो ऑडिट फीस है, और 194 करोड़ के आसपास, कुल मिला के 300 करोड़ रुपए कमा रहे हो एक साल में, 300 करोड़ ऑडिट फीस के नाम। अब आप समझ सकते हो कि आर्थर एंडरसन को क्यों पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। इट वॉज लेटर फाउंड आउट कि जो आर्थर एंडरसन के खुद के सीनियर मैनेजमेंट थे, दे वर इन्वॉल्व्ड in all the complex transactions. They were helping Enron in trying to cook its books, okay. And in 2002 the firm voluntarily surrendered its license to practice as a certified public accountant in the United States after it was found guilty of the crimes in the firm's auditing of Enron. और उसके बाद से आप लोगों ने आज तक इसका नाम नहीं सुना, क्योंकि 2004 के अंदर जो बची कुची आर्थर एंडरसन जो बाहर काम कर रही थी उसको भी किसी और कंपनी के साथ में मर्ज करवा दिया गया, तो आर्थर एंडरसन का नाम इसकी वजह से आज अपन नहीं सुनते था, ठीक है। The last thing that came out from this act was Sarbanes-Oxley Act. What does this act do? Sarbanes-Oxley Act now places the responsibility and accountability for tracking of the information for full day-to-day activities that have an impact upon financial performance very clearly upon the shoulders of the management team of those businesses. हम कहते हैं कि यार सीधी सी बात, कल को अगर आज के बाद में किसी भी कंपनी में कोई फ्रॉड निकलेगा तो सार्बजनिक एक्ट कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी का फुल कंट्रोल है। तो कंपनी में अगर फ्रॉड हुआ है तो वो तुमने ही करा। यूके के अंदर ये एक्ट पास होगा अभी रिसेंटली, अभी होने, कोविड नहीं होता ना तो पास हो चुका होता, ठीक है। लेकिन अगर यूके में एक्ट पास होता है तो इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस है कि अगर कंपनी में फ्रॉड मिलते हैं तो सीईओज और सीएफओज कैन बी फाइंड अप टू 3 million pounds and can be sentenced to imprisonment for 20 years or both. तो बहुत ही बड़े रिपरकशंस है, ठीक है ना। सार्बजनिक एक्ट को यूं कह लो अगर थोड़ा सा भी सक्सेसफुल रहा है
हाँ यूके में नहीं हुआ, यूएस में तो हो चुका है, यूएस के अंदर 2002 के अंदर पास हो गया था सार्बजनिक एक्ट, बट बाकी कंट्रीज देखो क्या होता है ना कि हर जगह पे, जैसे एनरॉन अगर वहां पे थी तो वैसे ही कुछ और कंपनियां लंदन में भी है, वैसे ही कुछ कंपनियां इंडिया में भी है, तो लॉबिंग तो होगी यार, ठीक है। तो ये एक्ट अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड पास नहीं हो पाया है, बट हाँ हर कंट्री कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से एक ड्राफ्ट जरूर लेके बैठी है कि कैसे इस एक्ट को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए। यूके वॉज सो क्लोज टू पासिंग दिस एक्ट, बट कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया और फिर ये एक्ट चला गया साइड में, ठीक है। इट वॉज डीम्ड एज अ नॉन एसेंशियल आइटम, नॉन एसेंशियल बिजनेस, तो बाद में डील किया जाएगा इसको, ये बोल दिया गया था। अब देखो कब आता है वापस। उम्मीद तो है कि 2022 के या अभी नेक्स्ट सेशंस आएंगे उनमें पास हो जाएगा और 2022 से एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कैसा लगा भाई केस? देखो एक चीज ना समझने की जरूरत है, देखो फ्यूचर प्रोफेशनल्स हो आप लोग, ठीक है, तो दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक कि आज तक अपने से पहले आने लोगों ने क्या किया, ठीक है ना, किस तरीके के फ्रॉड्स हुए हैं, किस तरीके के कह लो कि ऑडिटिंग फ्लॉज निकले हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया है, इसके जो प्रोमिनेंट केस स्टडीज हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एनरॉन का केस है। द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो 2007 का इकोनॉमिक बबल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 2000 का .com बबल के बारे में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेसिडेंशियल हाउसिंग बबल के बारे में, आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर जैसे माइटस और सत्यम वाला केस था उसके बारे में, आपको पता होना चाहिए हाउ किंगफिशर, तो ऐसे जो बड़े बड़े केसेस, ठीक है, इनके बारे में आपको जरूर पता तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और है जैसे वी वर्क के साथ में क्या हुआ, ठीक है। और अगर जाना चाहते हो तो एक वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉन्जी स्कीम थी, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट $65 बिलियन का नुकसान हुआ था लोगों को, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ठीक। तो इंटरेस्ट जगाओ इन चीजों के बारे में, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन देखनी है चीजें तो व्हाट यू कैन डू इज के 2-3 चैनल है, जैसे एक है चैनल बाय द नेम ऑफ कोल्ड फ्यूजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूएस के सारे केसेस के बारे में ऐसे बात करते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हो। इंडिया के तो लगभग हजारों चैनल है यार, ठीक है, तो किसी को भी देख लेना, इंडिया के तो लगभग सारे केसेस के ऊपर हजारों वीडियो बना रखी सब लोगों ने, ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है। कोशिश करना ऐसे चैनल को देखो जो थोड़ा सा रिलायबल हो, ठीक है, हर कुछ ना बोल रहा हूँ क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, इन केसेस की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। कोल्ड फ्यूजन, COLD, कोल्ड फ्यूजन देख सकते हो। यू कैन वॉच द वीडियोस मेड बाय वेंडरवर्क प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर आपको 2007 का पूरा बायो बबल समझना है तो वैसे तो मैंने अपने अपने इंस्टीट्यूट पे एक बार अपन ने जब मूवी सैटरडे करते थे पहले, तो वहां पे अपन ने एक बार मैंने वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी रिगार्डिंग दिस, जो लोग नए बच्चे उन्होंने शायद नहीं देखी होगी, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री रिगार्डिंग 2007 ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है ना, उसको देख सकते हो, आपको ऑब्वियसली इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अंदर, ऑलमोस्ट शायद 45 मिनट्स की कुछ है वो, ठीक है, तो वैसे देख सकते हो। एक आप देख सकते हो थेरेनोस करके एक ब्रांड थी, ठीक है, उसके बारे में सर्च करना, ठीक है, वो भी एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल कह लो या वैसा कह सकते हो वो था। तो बेसिकली मतलब ये है कि आप लोगों को इस तरह केसेस क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप आगे जाके फ्यूचर प्रोफेशनल्स बनोगे, हो सकता है कुछ ऑडिटिंग फील्ड में जाए, कुछ फाइनेंस फील्ड में जाए, कुछ अकाउंटिंग फील्ड में जाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, व्हाट इज द फाइन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो एज अ प्रोफेशनल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा वेंडेवर्स प्रोडक्शन, ठीक है, उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। चलिए कभी और किसी सेशन में ऐसी आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।